Hi kids, hope you're doing well. So today we're going to start with the 13th chapter, Industrial Revolution. Alright, the early man was the greatest inventor. That means यहाँ पर हम पहले के लोगों की बात कर रहे हैं, पास्ट पीपल की, हमारे पास्ट में जितने पीपल रहे हैं, हमसे पहले जो इस अर्थ पर आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. दैट मीन्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उनकी बिल्डअप कैसे हुई थी हमारे वर्ल्ड में, वो किससे स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं. द अर्ली मैन वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर. तो जो हमारे अर्ली मैन थे वो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर रहे हैं. He discovered the fire, agriculture, copper, iron, etc. तो जो अर्ली मैन थे उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज और थिंग्स के बारे में रिसर्च की थी. He also invented the wheel. उन्होंने ही व्हील, दैट मीन्स एक राउंड कलर का शेप जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स मूव करने में ईज प्रोवाइड करता है, उसकी इन्वेंशन भी करी थी. So the discovery of metals and the different sources of power and the inventions are the things which drastically change the lifestyle of a man. तो ये कह रहे हैं कि because इन सब inventions की वजह से और हमें sources जो मिले हैं power की वजह से, उनकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल, दैट मीन्स अस ह्यूमन बींग्स की जो लाइफस्टाइल है और जिस स्पेस पर हम अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई हैं, चेंज आ गए हैं उनमें. We all have seen that when the water in a kettle boils, the lid of the kettle starts jumping. So when we see, जब हम kettle में water boil होने के लिए रखते हैं, as soon as the water starts to become hot, जब वो boil होना start होता है, तो उसकी जो lid होती है, जो उसका cover होता है, वो actually jump करना start कर देता है temperature की वजह से. It is because of the steam that rises to escape from the kettle. तो जब स्टीम निकलती है, दैट मीन्स जो हम फॉग टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हम स्टीम देखते हैं, वो एस्केप करने की ट्राई कर रही होती है फ्रॉम दैट केटल. Similarly, you must have seen the weight on a pressure cooker jumping violently when the steam in the vessel has accumulated. So जब प्रेशर कुकर में हम कोई फूड कुक करते हैं एंड जब वो अपनी विसल ब्लो करता है, so we see कि कितने प्रेशर से स्टीम बाहर आ रही होती है. We see fog releasing उसके कैप में से. About 250 years ago, a young boy in Scotland, while looking at the boiling water in the kettle, thought of using this power of steam to run machines. Now, 250 years पहले एक स्कॉटलैंड के बॉय थे जिन्होंने देखा कि ये जो स्टीम है जो कि हमारे यूटेंसिल से रिलीज हो रही होती है, उनसे वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि हम उससे मशीन्स भी रन करते हैं. His name was James Watt. Alright, इनका जो नेम था जेम्स वॉट था. In 1769, James Watt invented the first steam engine which could be used not only to throw water out of coal mines but also to run machines by making a wheel turn. तो 1769 में जेम्स वॉट ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट करी जो कि कोल माइंस में से वाटर निकालती थी, बट एट द सेम टाइम एक इंजन को भी रन कर सकती थी if we add a wheel to it. It was the beginning of the Industrial Revolution in Europe. So, with this machine in 1769, जो जेम्स वॉट ने इन्वेंट करी थी, उस मशीन से we saw कि Industrial Revolution begin हुआ यूरोप में. Soon many types of machines were made. Now after that, many types of machines का construction हुआ था. They were run by steam. As a result, goods could be produced quickly and cheaply. So because ये जो machines थी वो steam से run हो रही थी, तो जो goods थे, that means जो product थे, वो अच्छी quality में और बहुत ही fast pace में, that means जल्दी जल्दी produce हो रहे थे. Steam engines were also fitted in ships and boats which sailed on the seas. तो ये जो steam engines थे, ये सिर्फ products बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी ships and boats को sail करने के लिए भी use किए गए. It made England the queen of the seas, as the ships could sail across the seas to far off countries. Now, England जो था वो actually queen of seas बन गया because उनकी जो ships थी वो बहुत दूर countries तक जा सकती थी because of steam engines, वो travel कर पा रही थी. After some years, a boy became very eager to invent another type machine. Now, कुछ years के बाद एक boy different type of machine बनाने के लिए बहुत excited थे. He was George Stephenson. George Stephenson was a worker in a coal mine. Now George Stephenson ने एक machine invent करी क्योंकि वो एक worker थे coal mine में.
In 1815 he invented a steam engine that could move on wheels. उन्होंने 1815 में एक ऐसा इंजन डेवलप किया जो कि सिर्फ सी पर नहीं बल्कि लैंड पर भी वर्क करेगा. It was called locomotive because it moved from one place to another and carried load in its wagon tied to its back. Now ये जो इंजन था इसका नेम रखा गया locomotive because वो one place से दूसरी place पर ट्रैवल करता था on land और अपनी बैक पर एक लोड that means weight products टाई करे होते थे. In 1825, the first locomotive invented by Stephenson ran on rails, dragging behind 34 wagons loaded with coal and passengers. So 1825 में जो स्टेफेंसन का मॉडल था, जो उन्होंने एक इंजन बनाया था, वो रेल्स के पीछे लगा. रेल्स मतलब जिस पे हमारी ट्रेन्स रन करती हैं जिन टू लाइंस पे, उनको हम रेल्स कहते हैं. ऑलराइट, सो ही क्रिएटेड दिस इंजन. यू सी दिस, उन्होंने ये इंजन किया जिसका नेम था लोकोमोटिव स्टीम इंजन. नाउ ये कोल भी कैरी कर सकता था और पैसेंजर्स को भी वन प्लेस से अपनी डेस्टिनेशन पर लेके जा सकता था. It moved at the speed of 12 miles an hour. ये कितनी स्पीड कर सकता था? 12 miles an hour. In 1829, the first railway was built. 1829 में first railway build किया गया. In 1830, Stephenson made another engine which could run at the speed of 30 miles an hour. It was called the rocket. Now, 1830 में स्टेफेंसन ने एक और इंजन डिजाइन किया गया जो 30 माइल्स एन आवर की स्पीड पर ट्रैवल करता था एंड उसका नेम रखा गया द रॉकेट स्टीम इंजन. दिस वन यू सी ओवर देयर. ऑलराइट, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन ग्रेटली रेवोल्यूशनलाइज्ड द वर्ल्ड. नाउ ये जो स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन थी, इसने बहुत ज्यादा और अच्छे चेंज लेकर आए, ये रेवोल्यूशन लेकर आए अपने साथ. It led to the establishment of large number of mills and factories which began to produce a lot of things both quickly and cheaply. Now because of this revolution, बहुत सारी new factories and mills जहाँ पर products बहुत big mass में, बहुत ज़्यादा number में produce होते थे, उनका construction भी हुआ. The ships now began to carry goods and passengers to longer destinations with less time. Now because new models of engines were coming, जो ships थी, जो trains थी, वो और ज़्यादा better हुई थी और अब वो सिर्फ सेल नहीं होती थी, सिर्फ गुड्स को ही नहीं बल्कि पैसेंजर को भी वन प्लेस से अपनी डेस्टिनेशन तक रीच करवा देती थी. Trade and commerce increased many times and life became more comfortable and more pleasant. Now जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, दैट मीन्स बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज अब हम और सिटीज और कंट्रीज के पीपल से ब्रॉडली कनेक्ट कर पा रहे थे. सो लाइफ जो थी वो और कंफर्टेबल और प्लेजेंट, दैट मीन्स गुड हो गई थी. इन ओल्डन टाइम्स मैन कुड नॉट थिंक टू फ्लाई इन देयर. नाउ पहले के टाइम में वन मैन कुड नॉट थिंक कि वो भी एयर में फ्लाई करेंगे. He used to watch the birds flying in the sky and hear about the Pushpak Viman which brought back Shri Ram, Sita, Lakshman and his devotee to Ayodhya. Now, पहले के टाइम में सिर्फ हम जो ह्यूमंस थे उन्होंने सिर्फ लॉर्ड रामा और सीता के बारे में सुना था जो कि फ्लाई करके पुष्प विमान से अपने घर अयोध्या वापस आए थे. बट ही कुड नेवर थिंक, जो मेन थे वो दे कुड नेवर बिलीव कि हम ह्यूमन बींग्स भी एक्चुअल में एयर में फ्लाई करेंगे. Similarly, you might have read the story of Icarus who flew into the sky with the help of the wings made of wax. इसी तरीके से वो एक स्टोरी बताते हैं इकारस एक पर्सन की जो कि वैक्स के विंग से स्काई में फ्लाई कर रहे थे. As he flew very high, the wax melted and he fell into the sea. तो जैसे जैसे वो फ्लाई हाई हो रही थी, ऑलराइट, उनके जो विंग्स थे वो मेल्ट हो रहे थे और वो सी में गिर गए. ऑलराइट, तो इकारस की जो ये एक ट्राई थी वो एक्चुअली फेल हो गई. ही वाज़न्ट अकम्प्लिश्ड इन दैट. इन द 18th century, some people flew into the sky in hot air balloons और हाइड्रोजन balloons. अब 18th century में कुछ लोग आते हैं जो कि हॉट एयर बलून्स में फ्लाई करने की ट्राई करते हैं, जो कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, वो बलून उससे फिल्ड होता है. The first manned balloons was flown on 21st November 1783, which went up to a height of 9 km over patch. तो पहला हॉट एयर बलून फ्लाई हुआ था 21st नवंबर को इन 1783
एंड कब कितने हाइट पे 9 किलोमीटर की हाइट पे इट वेंट अप. In the subsequent years, scientists made many improvements in balloons flights which ultimately led to the invention and development of the aeroplane. Alright, so subsequent years, that means उसके आगे कुछ near years में ही साइंटिस्ट ने इम्प्रूवमेंट्स करी और जो बलून था वो अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन हुआ जिससे कि हमें एरोप्लेन भी डेवलप करें. It was Sir George Cayley, an Englishman, who first of all thought that it would be possible to fly a plane through the air if it is light and at the same time if the air could be forced against its wings. Now, Sir George Cayley, जो कि एक इंग्लिशमैन थे, उन्होंने सोचा कि it is possible to fly in the air. अगर हमारा एरोप्लेन जो होगा वो वेट में लाइट होगा एंड एट द सेम टाइम जो उसके जो विंग्स होंगे वो एयर के अगेंस्ट फ्लाई कर रहे होंगे. Soon he made a lightweight plane fitted with wings, but there was no engine light and powerful enough to move the propeller. Now very soon उन्होंने अपने आइडिया पर एक्ट किया और एक ऐसा प्लेन बनाया जो कि बहुत ही लाइट वेट था बट उसमें कोई इंजन नहीं था, वो पावरफुल नहीं था कि उसके जो प्रोपेलर दैट मीन्स जो उसके विंग्स थे वो रोटेट हो सके सो दैट इट कैन फ्लाई बिकॉज उसमें कोई इंजन और लाइट ही नहीं थे. His countrymen William Henson and John Strongfellow did his job and made their model fly up to 40 yards in 1848. This marked the beginning of powered flights. Now after him, उनके जो countrymen थे, that means उन्हीं के country के जो people थे, William Henson and John Strongfellow, उन्होंने ये work किया और उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो कि 1848 में 40 यार्ड्स तक फ्लाई कर पाया. उन्होंने इसी के साथ दैट मीन्स सर जॉर्ज केली जो कि इंग्लिशमैन थे और उनके कंट्रीमैन विलियम हेंसन एंड जॉन स्ट्रॉन्गफेलो की वजह से ही हमने फर्दर और एरोप्लेन में एडवांसमेंट्स की ट्राई करी. It was, however, the Wright brothers who first of all built the aeroplanes of the modern lines in 1903 and successfully flew it on 17 December 1903. It was the beginning of the air age. Now, इन्होंने आइडिया दिया था, alright, and they did experiments which were successful. But in modern times, जो actual aeroplane जो start हुए थे with flying for flying वो उनके inventors थे Wright brothers. नाउ राइट ब्रदर्स ने 1903 में इन्वेंट किया था एरोप्लेन एंड 17 दिसंबर 1903 में ही हमारी फर्स्ट फ्लाइट भी फ्लाई की थी और इसी को विद दिस हम एयर एज की स्टार्ट कहते हैं. ऑलराइट, सिंस देन मेनी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन द डिज़ाइन ऑफ एरोप्लेन्स. नाउ राइट ब्रदर्स की इन्वेंशन के बाद एरोप्लेन्स में बहुत सारे न्यू चेंजेस आए हैं. Now there are aeroplanes which fly across the seas and over the lofty mountains, vast deserts and the thick forest. Now हमारे पास इतने एडवांस एरोप्लेन्स हैं कि वो इन सभी क्लाइमेटिक और नेचुरल कंडीशन से भी क्रॉस हो जाते हैं. Now aeroplanes are used to transport goods and passengers. अब एरोप्लेन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को और पैसेंजर्स को. Now गुड्स का मतलब यहाँ पर है प्रोडक्ट्स को. ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट सोल्जर्स. अब एरोप्लेन्स का यूज सोल्जर्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. दे आर ऑल्सो यूज एज बॉम्बर्स एंड फाइटर प्लेन्स इन वॉर. नाउ जिस टाइम पर वॉर होती है उस टाइम पे फाइटर प्लेन्स और बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए जिस टाइप के प्लेन का यूज होता है वो भी हमने इन्वेंट किए हैं. फोटोग्राफी एंटर्ड ऑल द स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स. नाउ आफ्टर एरोप्लेन्स हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं. नाउ इन लास्ट 100 ईयर्स में हमारे सेंचुरी में हमारे वर्ल्ड में फोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा रूल हुआ. नाउ देयर आर फैमिली एल्बम्स, पोर्ट्रेट्स, फोटोग्राफिक इलस्ट्रेशंस इन मैगजीन्स एंड बुक्स, cinema, X-ray, color slides and numerous other applications of this invention in various trades and professions. Now हम जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ का नेम दिया गया है ये एक्चुअल में फोटोग्राफ्स ही होती हैं. ऑलराइट, और इसी के वे में लास्ट 100 ईयर्स में हमने अपना बिजनेस और प्रोफेशन को और भी ज़्यादा डेवलप किया है. द फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफ्स वर मेड बाय टू फ्रेंचमैन, जोसेफ नेपी एंड लुई डैगवेल. तो पहली प्रोफेशनल दैट मीन्स ऑथेंटिक फोटोग्राफ्स जो डेवलप की गई थी वो इन टू पीपल ने करी थी. व्हाट वर द नेम्स? जोसेफ नेपी एंड लुई डैगवेल. Paper negatives and paper prints were made in 1841 by an English photographer for Talbot.
नाउ टैलबॉट के लिए 1841 में पेपर नेगेटिव्स एंड पेपर प्रिंट्स, यानी कि दैट मीन्स जिन पेपर्स पर फोटोग्राफ प्रिंट होकर आई थी और आएगी और जो न्यूज़पेपर पर प्रिंट होंगे, उनका इन्वेंशन किया था एक इंग्लिश फोटोग्राफर ने. Alright, it was however in 1888 that Eastman introduced the first roll film camera which he got patented under the Kodak name. Now पहला फिल्म कैमरा, दैट मीन्स जिन पर फिल्म चलती है तो वीडियो प्ले हो सकते हैं या फिर हम एक ही बारे पे न्यूमरस फोटो क्लिक कर सकते हैं, वो कैमरा फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था, ईस्टमैन ने किया था इन 1888 और उसका नेम रखा गया था कोडैक. Since then, photography in principle developed around this invention. Now after that, print के basis पे ही, that means जो फिल्म कैमरा आता है उसी के बेसिस पे जो इन्वेंशंस हुई कैमरा की वो इसी के बेसिस पर होती हैं. It depends on the action of light on a film coated with a thin layer of silver bromide. Now it depends on the action of light, यानी कि एक पिक्चर को क्लिक करते हुए उसके ऊपर किस फोर्स में लाइट आ रही है और वो कितनी थिन लेयर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड से एक्सपोज हो रही है. अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ चैम्बर विद द लेंस एट वन एंड एंड द सेंसिटिव फिल्म ऑन द अदर एंड. तो एक कैमरा में फ्रंट में हमें लेंस दिखता है और उसके पीछे एक सेंसिटिव फिल्म होती है, दैट मीन्स इतना थिन पेपर होता है विच इज़ मेड ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. ओके और उसी पे सभी पिक्चर्स और मेमोरीज हमारी कैप्चर होती हैं. अब बॉक्स कैमरा इज द सिंपलेस्ट कैमरा, दैट मीन्स ये जो कैमरा होता है ये एक्चुअली एक सिंपलेस्ट कैमरा है. अर्ली कैमरास वर मच लॉन्गर बट नाउ स्मॉलर एंड स्मॉलर कैमरास आर बीइंग मेड. सो दे आर सेइंग कि जो हमारे पहले के कैमरास थे, दैट मीन्स जो न्यू इन्वेंशंस थी उस टाइम के कैमरास जो थे वो बहुत ही बिग होते थे, दे वर लार्जर इन साइज. बट नाउ विद टाइम जो हमारे कैमराज हो रहे हैं वो एक्चुअली स्मॉल होते जा रहे हैं और उनके जो परफॉर्मेंस के फंक्शंस होते हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. फिल्म्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड कैन फोटोग्राफ इवन इन डल वेदर. और उसमें जो फिल्म प्लेस होती है, दैट मीन्स जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है जो कि कैप्चर करती है, वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और अब एक बैड वेदर में भी हम फोटो को शूट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स हमें सनी वेदर का वेट करने की नीड नहीं है. Modern cameras have synchronized flash and automatic control और adjustments. We all know कि जो हमारे पास अब मॉडर्न कैमराज है उसमें फ्लैश कंट्रोल होता है, सिंक्रोनाइज्ड फ्लैश होता है, दैट मीन्स हम अपने बेसिस पे फ्लैश को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और जो हमारी कंट्रोल एडजस्टमेंट्स होती हैं, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, उन सब वो सब भी हमारे हैंड में ही होते हैं. Photography today is so simple that many people and children take it as a hobby. So in today's time photography इतनी easy हो गई है, simple task हो गया है that even children are taking it as a hobby. It has opened new doors of entertainment and education. Now हमारे जो new cameras हैं उन्होंने actually एक education के लिए new gate open कर दिया है. Now we can obtain photography even from the other space as well as from underneath the oceans. Now हम जो photography कर सकते हैं वो other spaces में, outer spaces में, as a matter of fact ocean के अंदर भी कर सकते हैं. We have such strong cameras. In medicine, X-ray has made possible detection of skeleton abnormalities and injuries. तो मेडिसिन में जो हमारी अगर बोन ब्रेक हो जाती है और वी नीड अ स्कैन ऑफ बोन्स और इन अ बॉडी पार्ट्स जो कि हमें विजिबल नहीं हो सकते हैं, तो इन मेडिसिन यही कैमरास हमें हेल्प करते हैं दैट वी टेक आउट हमारे एक्सरे और सीटी स्कैन्स एंड एमआरआईज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं ताकि हम किसी भी इंजरी को डिटेक्ट कर पाएँ. Films are screened in a cinema hall for our entertainment. Now other example is कि हमारी entertainment के लिए जो movie theaters होते हैं वहाँ पर भी हम कितने टाइम तक एक फिल्म देख सकते हैं. Books and magazines are illustrated to explain important facts and statements. Now next is कि हमारे पास बुक्स एंड मैगजीन्स होती हैं जो कि हमें इलस्ट्रेट करती हैं, दैट मीन्स शोकेस करती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को. इन फैक्ट फोटोग्राफी हैज़ ओपन न्यू हराइजन्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स. नाउ दे आर सेइंग कि फोटोग्राफी बिकॉज हमें इतने सारे एरियाज में वो हेल्प करती है तो उसने न्यू अचीवमेंट्स के डोर भी ओपन करती हैं फॉर अस. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हुए एंड हमारी लाइफस्टाइल को उन्होंने बेटर प्लेस दी.
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस नाउ. सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. जेम्स वॉट इन्वेंटेड द फर्स्ट. जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था. जॉर्ज स्टेफिसन वॉज अ वर्कर इन कोल माइन. जॉर्ज स्टेफिसन कोल माइन में वर्क करते थे. द राइट ब्रदर्स बिल्ट द एरोप्लेन इन विच ईयर. इट वॉज 1903. द अर्ली मैन वॉज द ग्रेटेस्ट. अर्ली मैन क्या थे? ग्रेटेस्ट इन्वेंटर. ऑलराइट, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप. यूरोप में स्टार्ट हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. ओवर हियर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड दीज आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स जिसमें हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. द फर्स्ट मैन्ड बलून वॉज फ्लोन इन on 21st November 1783. Okay, the dash built the aeroplane on the modern lines. Modern lines में किसने build किया था aeroplane? Wright brothers. Next, dash has opened new horizons of human achievement. किसने open करे हैं new horizons? Photography ने. All right. जॉर्ज स्टेफिसन इन्वेंटेड द, क्या क्या था उन्होंने इन्वेंट? लोकोमोटिव, जो कि एक स्टीम इंजन था जो कि कोल और पैसेंजर्स को रेलवे लाइंस पर ड्रैग कर सकता था. पेपर नेगेटिव्स एंड पेपर प्रिंट्स वर मेड इन 1841. ऑलराइट, सो आई होप you learn all these dates and important names. Now our next exercise is tick for a true statement and cross for a false statement. So our first statement is पुष्पक विमान brought back Rama to Lanka. False, वो लंका नहीं अयोध्या वापस लेकर आए थे. A steam engine which could move on wheels was called locomotive. True, और उसके इन्वेंटर थे जॉर्ज स्टेफिसन. Photography has opened new horizons of human achievements. This is a true statement. In 1789, James Watt invented steam engine. True, James Watt was the first person जिन्होंने steam engine की invention की थी. So our fifth statement, first permanent photographs were made by two Englishmen. False statement, because two Frenchmen ने first permanent photograph का invention किया था. Alright, so our second exercise is match the following. So I have solved this for you. Let's read them. It was the beginning. And in column B ये match होता है of the air age. Second, man discovered the fire. किसके साथ मैच हो रहा है? Agriculture and etc. Because man ने ये सभी चीज़ें invent की होती है, discover की होती है. Engines were run by, engines किनसे run कर रहे हैं? Steam से. Aeroplanes are used to transport soldiers. It has opened new doors of entertainment. And next, films are screened in cinema hall for our entertainment. Alright, let's move on. Answer the following questions. So first one, what was called the rocket? The rocket का नेम किसको दिया था? The rocket का नेम दिया था जॉर्ज स्टेफिसन के सेकेंड मॉडल ऑफ स्टीम इंजन को. ऑलराइट, पहले का नेम था लोकोमोटिव एंड द सेकेंड वन वॉज नेम्ड एज द रॉकेट. और उसकी स्पेशलिटी क्या थी? जो लोकोमोटिव था इट कुड रन 12 माइल्स पर आवर, बट जो द रॉकेट था इट कुड रन 30 माइल्स पर आवर. सो इट वॉज एन एडवांस्ड वर्जन, वो एक न्यू वर्जन था ऑफ द लोकोमोटिव इंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिस्कवरी ऑफ आयरन रिगार्डेड एज अ ग्रेट लैंडमार्क? तो जो आयरन की डिस्कवरी है उसे ग्रेट लैंडमार्क क्यों रिगार्ड किया जाता है? बिकॉज इन्वेंशन ऑफ आयरन एक्चुअली हेल्प्ड अस इन आवर लाइफस्टाइल. उसने हमें सोर्स ऑफ पावर दिया and we were able to make a lot of new products and inventions with the help of iron. That's why it is regarded as a great landmark. Next, what invention did George Stephenson make? George Stephenson ने कौन सी invention की थी? George Stephenson made the invention of steam engine, जो कि seas और oceans पे नहीं, रोड पे रन करेंगे. उन्होंने रेलवेज इन्वेंट किए थे जिनके ऊपर एक इंजन होगा जो जिसके पीछे कोचेस होंगे और वो इंजन में इतनी पावर होगी इन दैट स्टीम इंजन और वो इतनी स्पीड से रन करेगा कि वो पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. सो आवर लास्ट क्वेश्चन,
Who invented the first steam engine? What was it put to? तो पहला steam engine किन्होंने invent किया था और उसका work क्या था? So first steam engine एक स्कॉटलैंड के बॉय ने invent किया था जिसका नेम था जेम्स वॉट। उन्होंने एक steam engine invent किया था जो कि इंजन्स को रन करवा पाता था और वो कोल माइन में हेल्प कर पाता था और मशीन्स में भी वर्क करने में हेल्प करता था। Alright, so that was it for this chapter. I hope you understood what industrial revolution meant for us और कैसे हमारे पहले चीज़ें इन्वेंट हुई और विद टाइम वो और भी ज़्यादा न्यू वर्जन्स में अपडेट होती रही। I'll catch you in the next video. Thank you.